Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of our Lord and Savior जीसस क्राइस्ट। सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने मरकुस चैप्टर 5 वर्स 25 टिल 34 हम पढ़ेंगे। The word of God today we will meditate on it, that is Mark chapter 5 verse 25 till 34। और परमेश्वर के इस खूबसूरत कलाम को पढ़ के मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप इस पे मेडिटेट करेंगे तो परमेश्वर आपके विश्वास को और मजबूत और अटूट बनाएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा इलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, सभी स्वर्गदूतों, मोस्ट होली सेवन एंजल ऑफ द लॉर्ड, Holy Mother Mary, we are so thankful to you for your unconditional mercy and blessing. It is your grace, your mercy, your will, Father Lord, you had blessed me, my family member, my wife, our kids, our brothers, our sisters, and every believer, pastor, preachers, Father Lord, with a very strong faith in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit of protection and warrior angel, wisdom and knowledge, with a very good health and a long-lasting life. Make me able to read the word of God today, Father Lord, and meditate on it and receive the abundant blessing on me, my family member, on every believer, pastor, preacher. In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and amen. परमेश्वर का पवित्र कलाम मरकुस चैप्टर 5 वर्स 25 ऑनवर्ड आई विल रीड इन हिंदी। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेकानेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने ऐसा ईसा के विषय में सुना था और भीड़ के पीछे से आकर उसका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भी छूने पाऊं तो उन्हें अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते हैं ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं कि इसने मेरा स्पर्श किया। जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोग से मुक्त हो जाओ। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत यहोवा के चुने हुओं पर अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। I'll read in English. Mark chapter 5 verse 25 till 34.
There was a woman who had suffered terribly from severe bleeding for 12 years. Even though she had been treated by many doctors, she had spent all her money, but instead of getting better, she got worse all the time. She had heard about Jesus, so she came in the crowd behind him, saying to herself, "If I just touch his clothes, I will get well." She touches his cloak, and her bleeding stopped at once, and she had the feeling inside herself that she was healed of her trouble. At once Jesus knew that power had gone out of him. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" His disciples answered, "You see how the people are crowding you. Why do you ask who touched you?" But Jesus kept looking around to see who had done it. The woman realized that what had happened to her, so she came, trembling with fear, knelt at his feet, and told him the whole truth. Jesus said to her, "My daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your troubles." This is the word of God. Praise be to God. Amen. So, to all my brothers and sisters, आज के पवित्र कलाम में हमने दो चीज़ें बहुत ही महत्व इसमें जानी, जो हमने वचन पढ़ा है उसके अनुसार। नंबर 1, जो स्त्री जिसको 12 वर्ष से खून बहने की, उसके शरीर से खून बहने की प्रॉब्लम थी या डिजीज थी या कोई बीमारी थी, उसका केवल और केवल सिर्फ इतना विश्वास था। She had heard about Jesus. What did she heard? She heard that there's a name of a person whose name is Jesus, who called himself the Son of God, and he healed people. She said she had heard about Jesus, so she came in the crowd behind him, saying to herself, "If I just touch his cloth, I will get well." बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसी परेशानियां या दुविधा आ जाती है जब हमें किसी भी प्रकार का कुछ सोचने की क्षमता नहीं मिलती हमारे अपने आप से, लेकिन हमें उस समय क्या चाहिए? हमें केवल और केवल घुटनों पे आके यहोवा परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा जी की मौजूदगी के द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें इस सिचुएशन से बाहर निकाल ला। लेकिन उस समय मैक्सिमम टाइम जो फॉल बैक करते हैं बिलीवर्स, विश्वासी लोग जिनका विश्वास डगमगाता है, वो इधर उधर ताकना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा जो हम इस वर्ल्डली लाइफ में लोग अपने आप के ऊपर सिचुएशंस को हावी होने देते हैं, उनमें से एक सिचुएशन है कि शॉर्टफॉल ऑफ फाइनेंसेस अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कस या डिबेट करी जाए,
तो ये एंडलेस टॉपिक है, क्योंकि बहुत सी बार जब आप विश्वास में बढ़ने लगते हैं तब इस तरह की परेशानियां और दुविधा और अन्य प्रकार की दिक्कतें विश्वासियों के जीवन में आने लगती है। लेकिन उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारा विश्वास परमेश्वर में मजबूत रखना चाहिए। जिस तरह का विश्वास इस लहू बहती हुई महिला का था, वो कह रही थी, she had heard about Jesus, so she came in the crowd behind him, saying to herself, अपने आप से बात करते हुए वो भीड़ में से परमेश्वर के पीछे से आई, और उसका खुद में इतना विश्वास था, उसकी अंतरात्मा का यह विश्वास था कि वह जब यीशु मसीह नासरी के कपड़े को छू भी लेगी तो उसका ये रोग दूर हो जाएगा। और इसमें क्या हमने अगली वर्सेस में पढ़ा कि वो भीड़ में से आई और परमेश्वर को उसने पीछे से आके परमेश्वर के वस्त्र को छू लिया, और उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह को यह महसूस हुआ कि किसी को तकलीफ थी, और उसका विश्वास ये था कि वो अगर प्रभु को छू ले, प्रभु के वस्त्र को छू ले, तो वह चंगाई पा जाएगी। हुआ क्या? When she had touched Jesus' cloth, she got healed. And when Jesus knew about it, when he got to know that somebody had touched him for receiving the healing, when the healing go out from the body of the Lord, then he start asking from the disciples, who had touched me? बहुत सी बार हमारे साथ वाले, हमारे सगे संबंधियों को ये महसूस या ये एहसास नहीं होता कि आपके साथ क्या बीत रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बताना पड़े या पूछना पड़े कि भाई बहन बड़े बुजुर्ग आपकी क्या दुविधा है। बहुत सी बार एक जो प्रेम होता है एक दूसरे के बीच में, उसमें आपको ऐसे ही एहसास आ जाता है that my brother, my sister, my father, my mother, my elder, any elder is in some tension, some problem, some pain or anything, or whether they are happy, more than happy. We feel that only for those people to whom we love from our heart, not from our mind. क्योंकि दिमाग से केवल वही लोग जुड़ते हैं जिनको उनका मतलब आपसे पूरा करना होता है। आगे वचन कह रहा है कि वह महिला डरती हुई और कांपती हुई आई। I'll read the word in English. The woman realized what had happened to her, so she came trembling with fear. डरती और कांपती हुई परमेश्वर के पास आई। क्या उसने ऐसा कोई गुनाह किया था या कुछ और उसने ऐसा किया था कि उसे डर और कांपना पड़े और डरना पड़े? नो, उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको परमेश्वर ने जब पूछा,
सबसे कि कौन है वो जन जिसने परमेश्वर के छूने से, परमेश्वर को जब उसने छुआ तब चंगाई पा ली। परमेश्वर ने जब पूछा, परमेश्वर का केवल यही एक मकसद था कि वाकई जिस जगह में मैं मतलब यीशु मसीह अपने पिता का काम करने आए हैं, वहां पे एक ऐसा विश्वासी जन है जिसका ये विश्वास है कि अगर वे परमेश्वर के वस्त्र को छू लेगा तो चंगाई पा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को उसके विश्वास में बहुत खुशी मिली, इसीलिए वे पूछ रहे थे, लेकिन वे डर गई और कांपने लगी। फिर घुटनों पे आके उसने परमेश्वर को सारा वाक्य बताया। तब प्रभु ने क्या कहा? जीसस सेड टू हर, माय डॉटर, योर faith had made you well. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्योंकि वह परमेश्वर से उसने ये नहीं कहा कि हे प्रभु मुझे चंगा कर। उसका विश्वास इतना ज्यादा था परमेश्वर में, उसने कहा कि अगर मैं प्रभु के वस्त्र को छू भी लूं तो उसका वह रोग दूर हो जाएगा। आगे प्रभु कहता है, गो इन पीस एंड बी हील्ड ऑफ योर ट्रबल्स। परमेश्वर ने उस बच्ची को ये कहा कि माय डॉटर, गो इन पीस, योर फेथ हैज मेड यू वेल। तो आज हमें ये जानने की जरूरत है, क्या हमारा विश्वास इतना है या हमारा विश्वास इतना भी नहीं कि हम बहुत सी बार अपनी तकलीफों को लेके, जो परमेश्वर ने हमें पास्टर जी दिए हैं, पास्टर साहब दिए हैं और चर्च के अन्य एल्डर्स दिए हैं, हम अपनी तकलीफ लेके उन पे जाते हैं और प्रेयर्स करवाते हैं और बाद में कहते हैं, भैया ब्रदर आपने दुआ करी पर चंगाई नहीं मिली। आप ये नहीं समझते, आप ये नहीं जानना चाहते कि आपका विश्वास कितना है। I'm sorry। ब्रदर ने या बड़े बुजुर्ग ने या पास्टर साहब ने अपना कार्य किया, जो ड्यूटी उन्हें परमेश्वर ने दी थी, लेकिन उस कार्य होने के बाद आपको अगर आपको हीलिंग या आपका कोई भी काम नहीं हुआ तो वह क्यों नहीं हुआ, ये आपको ब्रदर को, पास्टर जी को या बड़े एल्डर्स को चर्च के कहने की जरूरत नहीं है। ये आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत वर्ष थी अभी जो मैंने वचन पढ़ा मरकुस में। मैं दोबारा ओपन करने लगा हूं, प्रभु बस 2 मिनट और लूंगा मैं। यहां पे लिखा है, लेट मी फाइंड द वर्स, बहुत खूबसूरत वर्स है। यहां पे लिखा था कि उसका खुद से वह कह रही थी, हाँ यह है, so she came in the crowd behind him saying to herself, if I just touch the cloth I will get well। क्या आपने अपने आप से यह कहा कि आज मैं इस समस्या के लिए अपने पास्टर जी से, अपने चर्च के, अपनी कलीसिया के एल्डर से, बड़े से बुजुर्ग से प्रार्थना कराने जा रहा हूं, और मेरा विश्वास है अगर ये प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में
मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा या मेरा ये कार्य सफल हो जाएगा। टू ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, परमेश्वर का कलाम हमें यही दर्शा रहा है। जरूरत है हमें विश्वास रखने की, और जब आप विश्वास के साथ कोई भी कार्य करते हैं वो सफल जरूर होगा। ये आज का परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हर एक विश्वासी, पास्टर, प्रीचर, बिलीवर पे, मेरे घर परिवार पे अब से लेके सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन एंड आमीन। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In Jesus' most holy and precious name, we give you thanks and praise always and forevermore. Amen. Amen. God bless me, my wife, our kids, our family members, in the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, love of Mother Mary. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God. Amen and amen.